السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما۔ بزرگان محترم، معزز نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کر یوں ہی چرند اور پرند کی طرف بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہم کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، مختلف کتابوں کو نازل کیا۔ اسی میں سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس دین کے اندر اسلام کی ساری تعلیمات کو تفصیلی طور پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ رمضان المقدس کے مہینہ جس میں ہم مختلف نیکیاں انجام دے رہے تھے اور دے رہے ہیں، جس کی ایک شکل آج ہم لوگوں نے جو اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی نیکیوں قبول فرمائے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور مزید زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر عبادات کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی ایک مختصر سی آیت پیش کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب کبھی ان لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، جب کبھی اس کو یہ کہا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا تھا، اور اس بیٹی کی خوشخبری جیسی یہ سنتا، اس شرم کے مارے گھر میں چھپ جاتا، نہ جانے قوم ہم کو کیا کہیں گے، قوم کی گھناؤنی الفاظ سے بچنے کے لیے، اسے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ چھپاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، الا ساء ما یحکمون، اے انسانو تو کیا ہی برا فیصلہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے مفسرین امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تفسیر معالم التنزیل ہے، اس تفسیر کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ جاہلیت کا بہت ہی بہترین نقشہ کھینچے ہیں، اور فرماتے ہیں عرب کے اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ جب کبھی جس کے گھر میں اگر بچی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، تو یہ لوگ یہ چاہتے، شرم کے مارے اپنا چہرہ کالا تو کرتا ہی تھا، لیکن یہ چاہتا اب اس شرمندگی کو، اس رسوائی اور اس ذلت سے بچنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ وہ اختیار کرتا، اور یہ کہ اس بچی کو اونی کپڑا پہنا کر کے، اونی لباس پہنا کر کے اس بچی کو کہتے کہ جاؤ اونٹنی اور بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ تھا، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ تھا کہ اگر اس بچی کو میں زندہ نہ رکھوں، اس بچی کو بالکل ختم کر دوں، درگزر کر دوں، تو وہ یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اس بچی کو 6 سال کے لیے انتظار کرتا تھا، 6 سال کا انتظار کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ بچی 6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی، یہ باپ جنگل میں جا کے کسی جگہ میں جا کر کے گڑھا کھودتا تھا، اور گڑھا کھودنے کے بعد ایک جیسے گڑھا تیار ہو گیا ہے، گھر آتا اور کہتا اپنی بیوی سے کہ دیکھو اس کو اچھا لباس پہنا دو، اس کو اچھا لباس زیب تن کر دو،
जैसे ही लिबास पहना दिया जाता, वो अपने ननिहाल से नाना नानी दादा दादी से मुलाकात करवा देता और उस बच्ची को ले जाकर के उसी गड्ढे के पास ले जाता। और जैसे ही बच्ची गड्ढे के पास पहुंचती, बाप कहता देखो उस गड्ढे के नीचे देखो। जैसे ही वो बच्ची अपनी निगाह गड्ढे की तरफ देखती, पीछे से बाप धक्का मार करके बच्ची को उसमें गिरा देता। बच्ची अब्बू जान कह करके तरस जाते, तड़प जाते थे। लेकिन ये नादान समझे कितना सख्त दिल होंगे। बच्ची की आवाज पर नहीं इसको दिल में रहम आया और मिट्टी उसको डाल दिया जाता था। दफन दरगोर जो है उसको दफन दरगोर यानी मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हालात हम मेरे भाई उस अरब के ज़माने में। इमाम बगवी रहमतुल्लाह ये दोनों कौल लिख के कहते कि इंसानों अपनी मकाम को समझो। ये मजहब इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया है, इस खवातीन का मजहब इस्लाम ने कितना बड़ा रोल अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक जब मजहब इस्लाम आया, इस औरत की पैदाइश पर बाइस खैर बरकत करार दिया है। ये बेटी जिसके लिए तुम्हारा दिल काला, तुम्हारा चेहरा काला हो जाता था, जिस बच्ची का नाम सुनते ही तू अपने घर में चेहरा छुपाता था, मजहब इस्लाम ने आकर के बतलाया ये तुम्हारे लिए बाइस खैर बरकत है, ये बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी। इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी। अहले जहां इससे बढ़कर तहजीब पे ऐसा क्या होगा। इंसान का मकाम क्या है, बेटियों का क्या मकाम, क्या रुतबा इस्लाम के अंदर। मजहब इस्लाम ने इसकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू किया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात व वअदल बनात कि इस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। यह माँ तो औरत ही की शक्ल में है, यह माँ तो औरत ही की शक्ल में है। मजहब इस्लाम ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ बाप की नाफरमानी बिलखुसूस अपनी वालिदा की नाफरमानी मजहब इस्लाम के अंदर हराम है। वह वअदल बनात और अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर करना भी मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नादान से, ऐसे इंसान से सवाल करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ऐ इंसानों अपनी नन्ही सी बच्ची को तुमने उसकी किस गलती की वजह से तुमने जिंदा दरगोर जो है दफन कर दिया। देखभाल कर ले यहाँ तक कि वो बुलूगत को पहुंच जाए और उसकी अच्छी तरीके से तरबियत किया हो, उसकी तालीमात का बंदोबस्त किया हो और अच्छे घराने में उस बच्ची की अगर शादी कर दिया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इंसान जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लम इस बेटी की परवरिश जो इंसान करता है, अपनी बेटी की जो देखभाल करता है, उसकी तरबियत सही तरीके से करता है, उसकी तालीमात का बंदोबस्त करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाप के लिए, ऐसे माँ के लिए कितनी बड़ी जो है खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ये माँ बाप मेरे साथ ऐसे होंगे। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम से पहले इस औरतों का क्या मकाम था, इस औरतों को किस नाहिये से लोग देखा करते थे, मजहब इस्लाम ने आकर किसका कितना बड़ा जो है मकाम दिया, इसका रुतबा अता किया। और इतना ही नहीं बल्कि जिस घर में अगर कभी बेटा पैदा होता है तो माँ बाप जो है बड़ी खुशी का इजहार करता है कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, चलो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे बेटी पैदा हो जाए तो उसकी खुशी में जरा कमी आ जाती है। हकीकी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी, हमारे मजहब इस्लाम ने भी इसका जो है तालीम दिया है कि बेटा पैदा हो जाए तो डबल जानवर ज़बह करो, बेटी पैदा हो जाए तो एक जानवर ज़बह करो। शरीयत ने हमारा ख्याल रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेटे का मकाम तुम्हारे बेटे से बड़े हैं और बेटी का मकाम तुम्हारे बेटे से नीचे है। हरगिज नहीं है मेरे भाई। बेटा का मकाम अपनी जगह है और बेटी का मकाम अपनी जगह है। दोनों की इज्जत करें, दोनों का मकाम अता करें। और मजहब इस्लाम ने इन दोनों का मकसद एक वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ने बताया है।
चाहे लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों का मकसद हयात अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाता है, वम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंस और जिन को, चाहे इसमें मर्द हो या औरत हो, ये दोनों ग्रुप में चाहे मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, इन सब के मकसद हयात क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में कोई मर्द का कोई मकाम नहीं, कोई औरत का कोई हैसियत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के एक मकसद के लिए पैदा किया है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया है। अगर मर्द अल्लाह की इबादत करके जन्नत हासिल कर सकता है तो वहीं पर एक औरत एक जो है ख़वातीन इबादत करके रब की बनाई हुई जन्नत भी हासिल कर सकती है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन यही गिनाया है कि अगर कोई मर्द अच्छा अमल कर रहा है तो उसका बदला उसी मर्द को मिलेगा, कोई औरत अगर कोई अच्छा जो है काम कर रहा है तो उसका अजर, उसका बदला पूरा का पूरा उसी औरत को मिलेगा। तो मजहब इस्लाम ने इस खवातीन का बड़ा एजाज और बड़ा मर्तबा दिया मेरे भाइयों। लेकिन हालात जैसे गुजरते गए, इस मजहब इस्लाम पर जिन खवातीन को इतने बड़े बड़े रुतबे दिए, इतने हुकूक दिए, वहीं पर एक फितना भी पैदा हुआ कि इस्लाम के अंदर औरतों का कोई मकाम नहीं है, इस्लाम के अंदर औरतों को जकड़ के रख दिया है। मेरे भाई, इस्लाम ने जो मकाम उसको दिया है, दुनिया का कोई मजहब ऐसा मकाम दे नहीं सकता है, कयामत की सुबह तक नहीं दे सकता है। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इन खवातीन का, इन औरतों को, इस लड़कियों को जो है मजहब इस्लाम ने एक मकाम अता किया है। तो बहरकैफ हमारे पास एक मसला पैदा हो गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस खवातीन को इतना बड़ा रुतबा दिया है तो क्या मुसलमान औरत अगर मस्जिद में आ जाए तो क्या फितना का जरिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान औरत अगर मसाजिद में आए इबादत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के लिए, तो क्या ये फितना का जरिया है? मजहब इस्लाम ने जो मकाम इसको दिया, सुभान अल्लाह। हदीस की रोशनी में लाइन से सुनेंगे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चंद सहाबियात प्यारे रसूल से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, कुरान मजीद में जो है बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द ही को जो है खिताब कर रहे हैं, मर्द ही को जो है तालीमात से जो है खिताब कर रहे हैं, औरत के सिलसिले में कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चंद सहाबियात जो है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन को इसकी अदा इतनी पसंद आ गई, सूरतुल अहज़ाब के अंदर मुस्तकिल एक सूरत नाजिल, आयत नाजिल किया और कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिदात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सवाल और चंद सहाबी के सवाल पे अल्लाह ने मुस्तकिल एक आयत नाजिल किया और कहा, सुनो, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द और मोमिन औरत, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले मर्द और औरत, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और औरत, अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुशू और खुज़ू आजिज़ी इख्तियार करने वाला मर्द और औरत, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है हक बात पेश करने वाला रास्तबाजी जो है, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है रोज़ा रखने वाले, चाहे मर्द हो या औरत। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, चाहे मर्द हो या औरत, इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाम ले करके कहा। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े सवाब का जो है वादा किया है और अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए एक अजर अजीम से नवाजेगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक खवातीन, एक औरत जो है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि क्या अल्लाह ताला खाली मर्द ही से
खिताब हो रहा है। रब्बुल आलमीन ने औरत को एक मकाम दिया कि उसके सवाल के जवाब पे रब्बुल आलमीन ने मुस्तकिल एक सूरत नाजिल किया। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत में कहा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर जो कोई अच्छी अमल करेगा उसका नतीजा, उसका अजर, उसका बदला मैं इस दुनिया में भी अता करूंगा और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी बदला अता करेगा। तो मेरे भाइयों, इबादत के नाहिए से मर्द और औरत में कोई तमीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मर्द भी अगर अल्लाह तबारक व तआला का इबादत कर रहे हैं या कोई औरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, दोनों बराबर है। जिस तरीके से एक मर्द जो है वज़ू कर रहा है, वही वज़ू औरतों के लिए है। अगर कोई मर्द जो है पाक साफ रह रहे, गुस्ल कर रहे, तो वही तालीम अल्लाह ने औरतों के लिए भी रखा है। कोई शख्स अगर नमाज के लिए मस्जिद में आता है तो वही तालीम अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उस ख़वातीन के लिए भी रखा है। तो अगर कोई मुसलमान ख़वातीन, कोई मुसलमान औरतें अगर मस्जिद में आए तो क्या ये फितने का ज़रिया है? हरगिज़ हरगिज़ नहीं मेरे भाई, बल्कि मज़हब इस्लाम ने इस औरत को एक ऐन हक़ अता किया है कि तू भी मस्जिद के अंदर आओ। जिस तरीके से मर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, जिस तरीके से मर्द के लिए वज़ू है, नमाज है, उसके लिए जो है क्या कहते हैं औकात आलमीन की इबादत के लिए मस्जिद में आया करती थी। और जैसे ही नमाज से फारिग हो करके जब वो निकलती अपने दुपट्टे से, अपने लिबास से निकल के, तो कोई मालूम नहीं कर सकता ये कौन है। कोई मालूम नहीं होता था किसी को कि औरत कौन है। वो गोया के मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ के निकलती थी। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि जैसे ही प्यारे रसूल सलाम फेरते तो अपनी जगह पर बैठी ही रह जाते, ताकि वो औरतें जो नमाज में शामिल थी, जमात में शामिल थी, वो आराम से जो है अपनी जगह लेकर खाली कर दें और आराम से वो निकल जाएं। उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह छोड़ा करते थे। तो ये दलील इस बात की है कि औरत के लिए भी मस्जिद में आने की तालीम मजहब इस्लाम ने दिया है कि वो इबादत के लिए मस्जिद में हाजिर हो। और इसी तरीके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं खैरु सुफूफि रिजाल अव्वलुहु, कि मर्दों का सबसे बेहतरीन सफ़ पहला सफ़ है और सबसे आखिरी सफ़ सबसे बदतर सफ़ है। व खैर सुफूफि निसाई आखिरुहा, और औरतों का सबसे बेहतर सफ़ आखिरी सफ़ है और सबसे बदतर सफ़ आखिरी सफ़ है। इस हदीस में भी देखिए, सबसे जो है अदना सफ़ जो है अव्वल सफ़ है, पहला सफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में क्या तालीम दे रहे हैं कि मर्दों का सबसे बेहतर सफ़ पहला सफ़ है और सबसे अदना सफ़ आखिरी सफ़ है। औरतों का सबसे बेहतर सफ़ आखिरी सफ़ है। ये सफ़ बंदी की जो तालीम हमारे रसूल ने दिया है, क्या बैठने के लिए या सिर्फ खाने पीने के लिए या टाइम पास करने के लिए या गपशप करने के लिए नहीं मेरे भाइयों। ये तालीम इसलिए दे रहे हैं कि वो भी जो है जिस तरीके से मर्द हजरात आकर के नमाजों का एहतमाम करते हैं, वो खवातीन भी आकर के नमाजों की खास पाबंदी करें। तो इस हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक खवातीन के लिए, औरतों के लिए भी मस्जिद में आकर के वो इबादत कर सकती है, मस्जिद में आकर के जिक्र व अज़कार कर सकती है, मस्जिद में आकर के दुआ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इस्तिग़फ़ार कर सकती है। यह दलील है और इस दलील के बिना पर वो खवातीन मस्जिद में आकर के इबादत कर सकती है। ये औरत का ना कोई जो है फितना और कोई परेशानी का जो है रास्ता और सबब नहीं है। उसी तरीके से मस्जिद में आकर के खवातीन नमाज पढ़ा करती थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, ये कम सिन सहाबी है, कम उम्र में इसको नमाज पढ़ाने का मौका मिला। और ऐसी गुर्बती का आलम, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ा रहे हैं, एक कपड़े में एक तहबंद में नमाज पढ़ा रहे हैं। जब सजदे में जा रहे हैं तो पीछे पिछला हिस्सा नजर आ रहा है। खवातीन औरत देख ली कि ये जो है सहाबी ये नमाज पढ़ा रहे, इसका पिछला हिस्सा नजर आ रहा है। उन्होंने एहतजाज किया, ऐसा क्यों ना हो कि इसके जो है लिबास का जो है बंदोबस्त किया जाए और सही तरीके से नमाज पढ़ाए। उस औरत की जो है इस एहतजाज पर चंद औरतों ने गौर तलब की और जो है एक लिबास खरीद कर हजरत अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता किया। और ये सहाबी बहुत खुश होकर के जो है वो लिबास पहन ले। और यहाँ भी देखिए
इस हदीस में इमामत करा रहे हैं, इमामत कराने के वक्त में भी, इस हालत में भी पीछे से जो है औरत देख करके कह रही है कि उसके लिबास जो है पिछला हिस्सा नजर आ रहा है, इसको लिबास पहन करके नमाज पढ़ाना चाहिए। अगर वो नमाज में जमात में हाजिर ना होती, मस्जिद में हाजिर नहीं होती, नमाजों की पाबंदी नहीं करती, तो उसको कैसे मालूम होता कि इस सहाबी के जिस्म पर लिबास है या नहीं है, इस इमाम के जिस्म पर लिबास है या नहीं है, उसको कैसे मालूम होता। तो मेरे भाइयों, ये एक दलील है कि ख़वातीन भी, औरतें भी मस्जिद में आकर के नमाजों की खास पाबंदी करेगी, उसके आने से कोई फितना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से खिताब होकर तालीम दिया करते थे, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हदीस है कि औरतों की जमात, तुम सब के सब ईदगाह के लिए नमाज ईदगाह में जाकर के नमाजों की पाबंदी करो। और ये इसलिए कि जो औरतें अगर वाकई में इन दो हालत हैज़ और निफास से अगर पाक है, अलग है, तो वो जमात में जो है शामिल होकर के नमाज ईदैन पढ़ेगी, और जो औरत इन दो हालतों में है वो हट करके दुआओं में शरीक होगी। ये इस बात की दलील है कि ख़वातीन भी मसाजिद में हो, ईदगाह में हो, जहाँ कहीं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती हो, वहाँ औरत भी आगे बढ़ के जो है वहाँ शामिल होकर के नमाज पढ़ सकती है और आ सकती है। लेकिन बड़ा अलमिया आज हमारा ये है कि हम औरतों को ऑफिसों का रास्ता दिखा दिए, मार्केटों का रास्ता दिखा दिए, किसी कॉलेजेस में जाकर के लेक्चर की तालीम हमने दे दी, बस और रेलवे स्टेशन में जा करके न जाने किस कसीर तादाद में हमारी माँ और बहनें जमा हो करके जो है एक जम्मे गफीर की शक्ल में धक्के खा खा करके बस में सवार हो सकती है, रेल में जो है सवार हो सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, और जो है क्या कहते हैं अपनी सारी जरूरियात के लिए घर से बाहर निकल सकती है, स्कूल और कॉलेजेस में जा सकती है, अस्पतालों में जा सकती है। लेकिन वही ख़वातीन अगर मस्जिद में आने का जो है एक जज्बा, एक शौक रखती है, तो हम कहते नहीं नहीं मत जाओ, ये फितना है, तुम्हारे वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। ये मेरे भाई, मेरे अकल में कौन ऐसी जो है दलील या कौन ऐसी सोच पैदा हो गया है कि हम औरतों को दुनिया की सारी चीज हासिल करने के लिए आज़ादी दे दें, और वही अगर ख़वातीन, वही अगर औरतें मसाजिद में आए, अल्लाह की इबादत के लिए आए, तो हम कहते ये फितना का जरिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, उम्मे हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, इसकी एक आदत देखिए कितनी प्यारी आदत है। ये फरमाती है कि मैं सिर्फ जुमे में हाजिर होकर के प्यारे रसूल की ज़बान मुबारक से जो सूरतुल काफ की जो तिलावत होती थी मिंबर पे, मैं सुन करके याद कर ली। सुभान अल्लाह, मैं सुन करके याद कर ली। जब वो ख़वातीन या वो औरतें जो मसाजिद का रुख न करें, मस्जिद में कभी हाजिरी न दे, तो उसको कुरान मजीद की तालीम कैसे होगी, वो जो है अल्लाह तबारक व ताला को कैसे पहचानेगी, वो रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत कैसे सीखेगी, वो इस्लाम की तालीमात से कैसे जो है अपने आप को जो है मुत्तसिफ होगी। ये जब तक हम ख़वातीन को मसाजिद में नहीं लाएंगे और जब तक हम औरतों को अपने साथ मस्जिद में नहीं लाएंगे, ये हमारी तालीमात से, इस्लाम की तालीमात से दूर हो जाएगी। बल्कि अलमिया तो ये है कि जितने फितने और फसाद मसाजिद से बाहर हो रहे हैं, अल्लाह हम सबको सही समझ दे, सही तौफीक दे, और उसी ख़वातीन को, उस औरतों को भी अपने साथ मसाजिद में लाने के रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। तो इसका सोच और इसका जो है क्या कहते ख्याल क्यों पैदा हुआ? उस ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में फितनों का दौर नहीं था, इसलिए ख़वातीन जो है मसाजिद में, मस्जिद नबी में जाया करती थी। अच्छी बात है, उस दौर में फितना फसाद नहीं था। तो क्या उस दौर के लिए ही हमारी तालीम है? क्या रसूलुल्लाह सल्लम उसी वक्त के लिए हमारा नमूना है? नहीं मेरे भाई, अगर उसी वक्त के लिए औरत के लिए ख़ास तालीम थी, तो हमारा और आपका यह भी हक़ बनता है कि हम उम्रे के लिए और हज के लिए अपनी ख़वातीन को न भेजें। हज के लिए और उम्रे के लिए ख़वातीन को न भेजें। आज भी सुभान अल्लाह देखिए, हरमैन और शरीफैन के अंदर ख़वातीन की क्या कसीर तादाद में हाजिर होती है, उम्रे की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, ज़िक्र व अस्काल की शक्ल में हो।
तो मेरे भाइयों, ये सारी दलाइल, ये सारी जो है रोशनी, दलाइल की रोशनी में ये बात बिल्कुल अजहर है, बिल्कुल वाज़े है कि ख़वातीन को, औरतों को मस्जिद में आना ये फितना नहीं है, बल्कि उसके लिए बाइस खैर है, बाइस खैर है। वो भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना चाहती है, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत हासिल करने का शौक रखती है, वो भी अल्लाह की सिलगाई हुई जहन्नम से बचने की फिक्र करती है। जब तक हम अपनी ख़वातीन को मस्जिद में नहीं लाएंगे तो इस्लाम की तालीम वो कैसे सीखेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसको कैसे मालूम होगा। तो उसका आना बाइस खैर है, ये फितना नहीं है। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए चंद आदाब बताए हैं, ख़वातीन के लिए चंद आदाब बताए हैं, कुछ जो है सबब दिए हैं कि जब कभी औरतें मस्जिद का रुख करें, जब कभी औरतें मसाजिद का रुख करें, उसको ज़ेबो ज़ीनत नहीं करना चाहिए, उसको ज़ेबो ज़ीनत नहीं करना चाहिए, खुशबू नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ज़ेबो ज़ीनत से खाली हो, खुशबू से वो बिल्कुल दूर हो। मामूली अपना जो है बुरके की शक्ल में जो लिबास लगाए, ढीले ढाले जो है अपना जो है तहबंद लगाए, चादर लगाए, और उस हालत में वो ख़वातीन मसाजिद में जाए, और जो उसके लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं, उनकी इबादत के लिए जो सिस्टम रखे गए हैं, वहाँ जा कर के वो भी इबादत कर सकती है। और ये तालीम देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद के अंदर मस्जिद आज़मिया अभी भी मौजूद है, अल्लाह अकबर, अभी भी इमाम अबू हनीफा की मस्जिद आज़मिया जिसके अंदर ख़वातीन 5 वक्त नमाजों की खास पाबंदी करती है, सुभान अल्लाह। आज हम उसके भी मानने वाले हैं, उसके भी जो है तकलीद करने वाले हैं, और बहुत सारे भाई उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि औरत के लिए मस्जिद में जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ख़वातीन मस्जिद में इबादत नहीं कर सकती है, ये तो फितने का ज़रिया है। मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह सल्लम की तालीम, गोया कि हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लम जो है उसको इतनी जो है छूट और इतनी आज़ादी दी है कि जिस तरीके से मर्द अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकते हैं, उसी तरीके से ख़वातीन भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकती है। मसाजिद में उसकी हाज़िरी बाइस खैर व बरकत है, ये जो है हमारे लिए फितना और फसाद का सबब नहीं है। बस ज़रूरत है कि जो ख़वातीन, माशाअल्लाह हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है कि मर्द के लिए अलग है और ख़वातीन के लिए अलग है। कहीं कहीं एक ही मस्जिद में 2 मंजिल होते हैं, ऊपर ख़वातीन के लिए, नीचे जो है मर्द हजरात के लिए। अगर ये सिस्टम, ये निज़ाम है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरत का आना बाइस मुबारक है, और औरत का आना ये हमारे लिए फितने का सबब हरगिज़ नहीं है। जो दलाइल हमने अभी सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में हो, मक्कातुल मुकर्रमा में हो, ये सारी जगहों में है, औरतें काफ़ी कसीर तादाद में आकर के नमाजों की खास पाबंदी किया करती थी। लेकिन अलमिया है, आज हमने मस्जिदों में उसे रोकने की वजह से, मस्जिद में उसको हाजिरी न होने की वजह से बिदातों खुराफात बढ़ रहे हैं, अल्लाह से दूर होते जा रही है। घर में बैठ करके जो है न जाने कितनी औरतें बिल्कुल जो है दीन से बज़न हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये ज़हन से निकाल दे कि औरतों का मस्जिद में आना ये फितना है। हरगिज़ फितना नहीं है, बल्कि बाइस खैर है। ये इस मसाजिद में अंदर हाजिर होना, किसी मसाजिद में जम करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, औरतों के बहुत सारे फ़वाइद हैं, और बहुत सारे फ़ायदों में से सबसे अहम फ़ायदा यह है कि वो औरतें इंशाअल्लाह दीनदार होगी, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत गुजार बनेगी, उसके अंदर ज़ुहद व तक़वा का सिफत पैदा होगा, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जो है खुशनुदी हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा। और जो औरतें मसाजिद में हाजिर होगी, उनके अक़ीदों का इस्लाह भी होगा इंशाअल्लाह, और उसके अंदर जो बदअमालियाँ होते हैं वो भी इस मसाजिद में हाजिर होने की वजह से इंशाअल्लाह उसकी बदअमाली दूर होगी। तो बहरकैफ ये किताब कि क्या मुसलमान औरतें मसाजिद में आने का फितने का ज़रिया है, जो मुख्तार नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, इसकी जो मुख्तसर जो है मैंने पेश किया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमको, आपको, दुनिया में रहने वाले हर मर्द हजरात को जो ख़वातीन मसाजिद में आने का शौक़ और जज्बा रखती हैं, अल्लाह ताला उसको आने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भाई किसी ख़वातीन पर, किसी माँ और बहन पर जुल्म करते हैं कि तू हरगिज़ नहीं जा सकती है, ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ खाना चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मसाजिद में जाने का कितने मरतबा इरादा किया, लेकिन मेरे खावंद ने मेरे ऊपर जो है जुल्म किया और ज़बरदस्ती हमको जो है मना किया। ऐसे हजरात को, ऐसे मर्द हजरात को चाहिए कि अल्लाह का खौफ खाए। क्यों
کیونکہ نبی کا تعلیم ہے کہ لوگوں جو خواتین مساجد میں جانے کا ارادہ کرتی ہے، نماز پڑھنے کی شوق رکھتی ہے، ایسی عورتوں کو تم منع ہرگز نہ کرو۔ البتہ جو آداب ہے، جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس آداب اور اس طریقے سے آنے میں کوئی اعتراض، کوئی فتنہ نہیں ہے، بلکہ خبائث سے خیر اور برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اپنا مقام سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی خاص جو عبادت کرنے کے رب العالمین توفیق عطا فرما۔ اللہ جس مقصد کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو عبادت مرد کے لیے ہے، وہی عبادتیں خواتین کے لیے بھی ہیں۔ جو ہے ذکر و اذکار مرد کے لیے ہے، وہی ذکر و اذکار خواتین کے لیے ہے۔ جو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ مرد حضرات کے اندر ہے، وہی جذبہ، وہی شوق خواتین کے اندر بھی ہے۔ تو جو بھائی، جو حضرات، بالخصوص جو ذمہ دار حضرات ہیں، اگر کوئی اپنی خواتین پہ اس طریقے سے قانون لاگو کیے ہیں تو اللہ کے واسطے اس قانون کو ہٹائیں۔ عورتوں کو بھی مساجد میں عبادت کے لیے حاضری دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی خواتین کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچے، اپنی بیٹیوں کا جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ کا حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مذہب اسلام نے جو اس کو آزادی دی ہے، وہ آزادی اس کو حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب جس مقصد کے لیے اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اللہ وہ مقصد ہم سب کو جو ہے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی جو ہے عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، اللہ اس مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے رب العالمین توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھیں، اسلام پہ قائم اور دائم رکھیں۔ جب اس دنیا سے اٹھائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر اٹھائیں۔ اللہ جو بھائی، جو بہنیں اسلام سے دور ہے، اللہ اس کو بھی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھائی اسلام کے سلسلے میں جو غلط جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو جو ہے اسلام کے لیے نرم فرمائے۔ اللہ اس کو دین اسلام کی توفیق، ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پہ قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ ہم سب کو بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کو اس جہاں بھی کہیں ہیں مساجد میں ساتھ لانے کے رب العالمین توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کو بھی اللہ کے گھر سے جو ہے محبت کرنے اور اللہ کے گھر سے جو ہے اپنا لو لگانے کے رب العالمین توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔